Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss three main important topics from the Hindu newspaper. The first article is digital arrest. The first point is the Supreme Court has authorized the CBI to take full charge in investigations raising digital arrest scam, giving the agency complete freedom to act without prior state government consent. मतलब द सुप्रीम कोर्ट है उसने सीबीआई को ये ऑथराइज़ किया है कि आप फुल चार्ज लें इन्वेस्टिगेशन में, जो कि डिजिटल स्कैम या डिजिटल अरेस्ट स्कैम के जो केसेस राइज हो रहे हैं। और इन्होंने एजेंसी को ये भी कंप्लीट फ्रीडम दी है कि आप इन्वेस्टिगेट करें विदाउट प्रायर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट। Second point, these scams involve fraudsters impersonating officials, often from police, CBI, NCB, or courier companies, pressuring victims through video calls and threats and forcing them to make payments। मतलब जो स्कैम ये है, ये क्या इन्वॉल्व, जो फ्रॉडस्टर हैं वो क्या क्या करते हैं। इम्पर्सनेट मतलब किसी और के रूप में, या इमिटेट करना, किसी की कॉपी करके, जैसे पुलिस, सीबीआई, एनसीबी या कोरियर कंपनीज, इनको प्रेशर करते हैं विक्टिम्स के थ्रू, किसके वीडियो कॉल्स के, और उनको थ्रेट्स देते हैं और उनको इस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर देते हैं कि फोर्सिंग देम टू मेक पेमेंट्स। Third, the court observed that state police forces are often unable to effectively deal with such organized crime, cybercrime networks that operate across state and sometimes from abroad। मतलब ये कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जो स्टेट पुलिस है वो मतलब ऑफन मतलब लगातार इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रही है, अनएबल टू इफेक्टिवली डील विद सच ऑर्गेनाइज क्राइम, साइबर क्राइम नेटवर्क दैट ऑपरेट अक्रॉस। मतलब ये ऑपरेट हमारे स्टेट से भी करते हैं और सब टाइम फ्रॉम अब्रॉड, और कुछ हमारे अब्रॉड से भी ऑपरेट हो रहे हैं। Fourth, due to cross-border and interstate nature of the scam, the court said CBI intervention is essential to ensure uniform investigation and faster crackdown on cyber criminal networks। मतलब जो क्रॉस बॉर्डर और इंटर स्टेट, मतलब कुछ केसेस हमारे क्रॉस बॉर्डर से भी होते हैं, इंटर स्टेट मतलब विद इन स्टेट नेचर ऑफ द स्कैम होता है। द कोर्ट सेट, जो कोर्ट ने सीबीआई से बोला, इंटरवेंशन इज एसेंशियल, जरूरी है टू इंश्योर यूनिफॉर्म इन्वेस्टिगेशन एंड फास्टर क्रैकडाउन ऑन साइबर criminal network। 5. The bench highlighted that elderly citizens, women, and vulnerable individuals are increasingly becoming victims of digital extortion disguised as arrest, creating a serious national concern। मतलब सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन कर रहा है, ये हमारी बेंच ने हाईलाइटेड किया है। Elderly citizens, women, and vulnerable individuals are increasingly become victims of digital extortion disguised as a arrest, creating a serious national, और जो कि ये हमारा एक serious national concern बन चुका है। 6. The Supreme Court noted that scam involving fake bank alerts, courier frauds, KYC update, job scam, and extortion are all part of largest cyber fraud ecosystem requiring centralized investigation। जो सुप्रीम कोर्ट उसने ये नोटेड किया है कि जो स्कैम होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं। जैसे आपके पास जैसे मैसेजेस आते हैं फेक बैंक अलर्ट्स के, कोरियर फ्रॉड्स के, KYC अपडेट्स कराने के लिए, जॉब स्कैम्स एंड सेक्स एक्सटॉर्शन आर ऑल पार्ट ऑफ लार्जेस्ट साइबर फ्रॉड इकोसिस्टम, और जो कि इसकी रिक्वायर्ड है किस चीज़ के लिए, सेंट्रलाइज इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट्स है। 7. The CBI has been instructed to coordinate with the state police, gather intelligence, dismantle call center, arrest operatives, and trace international link that enable these scam। मतलब ये सीबीआई को इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे विद स्टेट पुलिस के साथ, और गैदर इंटेलिजेंस, डिसमेंटल कॉल सेंटर, और अरेस्ट और कोऑपरेटिव एंड ट्रेस इंटरनेशनल लिंक। मतलब अगर इंटरनेशनल के लिंक भी अगर जुड़े हैं तो आप उसको इनेबल करेंगे दीज स्कैम्स के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज 8. द कोर्ट emphasized that strengthening cyber crime investigation capabilities is urgent because the Information Technology Act 2000 already places such offense under central jurisdiction। मतलब कोर्ट ने emphasize किया है कि strengthening cyber crime investigation को आप स्ट्रेंथन करें, जो कैपेबिलिटीज इज अर्जेंट बिकॉज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑलरेडी प्लेस सच ऑफिस अंडर सेंट्रल jurisdictions। And the second topic is IIP, means Index of Industrial Production। The first point is India's Index of Industrial Production growth for October fell sharply to 0.4%, marking the lowest level in 14 months, signaling a slowdown in overall industrial activity। मतलब जो हमारा इंडिया का जो इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो उसमें गिरावट आई है, मतलब फॉल हुआ है शार्पली टू 0.4%। ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है विद इन 14 मंथ्स।
इससे क्या सिग्नल आता है कि स्लो डाउन इन ओवरऑल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में स्लो डाउन आया है. सेकेंड पॉइंट, द डिक्लाइन वॉज मेनली ड्रिवन बाय contraction in electricity generation and consumer non-durable goods, both of which showed weak performance in October 2025. तो इसका मेन कॉज क्या है? मेनली दो कॉज हैं जो कि डिक्लाइन आया है हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स. मतलब नॉन ड्यूरेबल गुड्स होता है जिनकी सेल्फ लाइफ कम होती है. बोथ ऑफ विच शोड वीक परफॉर्मेंस. मतलब अक्टूबर 2025 में इनकी परफॉर्मेंस वीक देखी गई है. थर्ड, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रिमेन रिलेटिवली sluggish, failing to provide momentum to overall industrial expansion despite some recovery in previous months. मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो भी रिलेटिवली sluggish मतलब धीमा रहा है. फेलिंग टू प्रोवाइड मोमेंटम मतलब वो फेल रहा है मोमेंटम प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन डिस्पाइट सम रिकवरी इन प्रीवियस मंथ. मतलब प्रीवियस मंथ्स में कुछ रिकवरी देखी गई थी. एंड द फोर्थ, data released by the Ministry of Statistics shows that consumer goods output declined, indicating weak demand and possibly inventory adjustment by firms. मतलब जो डेटा रिलीज हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक ये शो करता है कि जो कंज्यूमर गुड्स आउटपुट है वो डिक्लाइंड हुआ है, जो इंडिकेट करता है वीक डिमांड एंड पॉसिबल इन्वेंट्री एडजस्टमेंट बाय फर्म्स. 5. Capital goods and construction related sectors showed mixed signal with some segment growth slightly while others recorded negative growth. मतलब जो हमारा कैपिटल गुड्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर हैं उनमें मिक्स सिग्नल्स है. मतलब कुछ सेगमेंट में ग्रोथ देखी गई है और कुछ सेगमेंट में ग्रोथ निगेटिव हुई है, मतलब कम देखी गई है. 6. Economists noted that festive season demand did not translate strongly into industrial output, suggesting broader economic caution among producers and consumer. मतलब जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ नोटेड करी है, जो फेस्टिव सीज़न डिमांड है उसने कोई ख़ास मतलब बूस्ट नहीं दिया या स्ट्रॉन्ग अपने फुटप्रिंट नहीं दिए इंडस्ट्रियल आउटपुट में, और ये सजेस्ट करता है ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉशन एमंग प्रोड्यूसर फॉर और कंज्यूमर्स के लिए. 7. Mining and quarrying output also saw contraction in multiple segments, adding additional pressure to all the overall IIP numbers for the month. मतलब हमारा माइनिंग सेक्टर एंड क्वेरिंग सेक्टर में भी आउटपुट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसमें भी स्लो देखा गया है इन मल्टीपल सेगमेंट, और इससे एडिशनल प्रेशर ऐड हुआ है टू द ओवरऑल IIP numbers for the month. 8. Experts suggest that the next few months will be crucial to watch whether industrial momentum recovers, as sustained low IIP growth may indicate deeper economic slowdown concerns. मतलब एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब जो आने वाले कुछ महीने हैं ये क्रूशियल होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे टू देखने के लिए कि वेदर इंडस्ट्रियल मोमेंटम या रिकवर होता है एज सस्टेन लो IIP, क्योंकि जो हमारा IIP सेगमेंट है या IIT प्रोडक्शन है उसमें लो सेगमेंट देखा गया है, और ग्रोथ में इंडिकेट डीपर इकोनॉमिक स्लो डाउन कंसर्न्स, और जो ग्रोथ है वो हमारा डीपर इकोनॉमिक स्लो डाउन कंसर्न्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो दिखा रहा है डीपर. And the last and third topic is AMR. So AMR stand for Antimicrobial Stewardship Program. So the first point is surveillance system for AMR across hospitals, laboratories, animal husbandries and food production remain patchy, creating gaps in monitoring resistance patterns and extending early warning system. मतलब जो सर्वेलांस सिस्टम फॉर AMR अक्रॉस हॉस्पिटल, लेबोरेटरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड फूड प्रोडक्शन में रिमेन पैची, मतलब कि क्या है, कुछ पार्ट्स में तो इम्प्रूवमेंट आई है बट कुछ पार्ट्स में मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, जिससे क्या होता है, इससे क्रिएट हो रहा है जॉब मतलब गैप्स इन मॉनिटरिंग रेजिस्टेंस पैटर्न्स एंड स्ट्रेंथिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम. द आर्टिकल highlighted that without strict regulation on antibiotic use in livestock, poultry and aquaculture, resistant bacteria will continue to spread through food chain and the environment. इस आर्टिकल में ये हाईलाइट्स किया जा रहा है विदाउट स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, मतलब बिना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस के ऑन किस पर एंटीबायोटिक यूज़ इन लाइफ स्टॉक. मतलब लाइफ स्टॉक मीन्स होता है हमारे पोल्ट्री एंड एक्वाकल्चर्स रिलेटेड टू द एनिमल विच इज़ लिविंग इन वाटर,
रेजिस्टेंट बैक्टीरिया विल कंटिन्यू टू, जिससे लगातार ये बैक्टीरिया स्प्रेड होंगे थ्रू फूड चेन्स एंड द इन इन्वायरमेंट. Next, expert says that India needs stronger political will and financial commitment as the current action plan lacks adequate budget allocation for training health workers, upgrading labs and improving antimicrobial stewards program. मतलब एक्सपर्ट का ये कहना है कि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स की, जिससे जो करंट एक्शन प्लान है उनमें एडिक्वेसी देखी गई. मतलब लैक ऑफ इनएडिक्वेट बजट एलोकेशन की लैक है, मतलब बजट नहीं है, और हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है. अपग्रेडिंग हेल्थ मतलब लैब्स को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है, और इम्प्रूविंग एंटी माइक्रोबायल स्टीवर्डशिप प्रोग्राम. 7. Collaboration between central and state governments remain uneven and many states still do not have functional AMR action plan, leading to inconsistent ground level implementation. मतलब जो हमारा कोलैबोरेशन है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट रिमेन अनइवन, मतलब वो अच्छे से कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा है. सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस नहीं अच्छे होते हैं, जिससे क्या होता है मैनी स्टेट डू नॉट हैव फंक्शनल AMR एक्शन प्लान. मतलब कुछ स्टेट्स के पास फंक्शनल AMR प्लान्स ही नहीं है. लीडिंग टू इनकन्सिस्टेंट मतलब उनमें कंसिस्टेंसी ही नहीं रहती है, जिससे ग्राउंड लेवल प्लान इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं. And 8. The article states that AMR cannot be tackled without a robust One Health approach, integrating human health, animal health, and environment measures along with public awareness, behavioral changes, and global cooperation. मतलब आर्टिकल ये स्ट्रेस करता है, मतलब ये सजेस्ट करता है कि जो हमारा AMR है कैन नॉट बी टैकल्ड विदाउट अ रोबस्ट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की ज़रूरत है, जो कि वन हेल्थ अप्रोच, integrating human health, animal health, and environmental measures along with public awareness, behavioral changes, and global cooperation.